Thank you for this day, Lord. Thank you for bringing us together, Father. We love you, Father. We lift your name on high, Lord. Thank you, Lord. We love you, Lord. We long for you alone, Lord. Thank you, Lord. You are our strength and you are our shield. We love you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Let's all worship Him. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Father. We come to your feet to learn from you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. As the deer panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship you. You alone are my strength, my shield.
long to worship you alone, Lord. We love you, Father. You're in our midst. We thank you for that, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. So last week we have learned and we will just go through it. और पिछले हफ्ते हमने सीखा और हम इसके दौरान हम जारी कर रहे So हैं. we can open Daniel 9th chapter 24th verse. So it helps us to calculate the times. वो हमें मदद करता है कि हम समय को जान सके. 70 weeks are decreed for your people in the vision he got. और उसे जो दर्शन मिला उस दर्शन में 70 सप्ताह ठहराए गए. And the holy city to stop their transgressions and put an end to sin. तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो. And to make an atonement for the iniquity. और पापों का अंत And to और bring everlasting righteousness. अधर्म का प्रायश्चित किया And to जाए. seal up the vision and the prophecy. दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर शाप दी जाए. And to anoint the most holy place. और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए. Rekha helped me to make this chart. रेखा ने मुझे मदद किया इस चार्ट को बनाने के लिए. So this is day 1. तो जो है पहला दिन, आप इस कर्सर को देख सकते हैं जहाँ पे डे 1 लिखा है. Then after that, this is 445 BC. तो ये जो है 445 BC. ये जो है 445 क्रिस्त के जन्म के पूर्व है. That means before Jesus came, 400 years before. इसका मतलब है यीशु मसीह के जन्म लेने से 445 साल पहले. We can see from book of Daniel 9:25. दानियल के किताब में 9वां अध्याय और उसका 25वां वचन. Know therefore and understand इसीलिए यह जान और समझ ले that from the going forth of the commandment to restore and to build up Jerusalem. कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर Unto the Messiah. अभिषिक्त प्रधान That के means समय. the command has been given from here. इसका मतलब है कि जो आज्ञा है यहाँ से दी गई है. In this time, इस समय 445 BC before Christ. क्रिस्त यीशु के जन्म के 445 वर्ष पहले ये जो आज्ञा थी दी गई थी. From that time उस समय to Christ's death. उस समय से लेकर क्रिस्त यीशु मसीह के मृत्यु तक. We can read it again. हम फिर से पढ़ेंगे. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to the restore and to build up Jerusalem unto Messiah. इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय 7 weeks and 62 weeks. 7 सप्ताह और 62 सप्ताह. It will be rebuilt with streets and trenches, but in the times of distress. और नगर कष्ट के समय में फिर से बसाया जाएगा. So from this time, तो हम देख सकते हैं ये समय से so to this time 445 क्रिस्त यीशु के जन्म के पूर्व वर्ष से लेकर यहाँ तक हम देख सकते Messiah हैं. shall cut off. मसीहा जो है वो काटा जाएगा. That is 483 years. वो होगा
83 वर्ष, that is 69 weeks. और वो हम देख सकते हैं यहाँ पे 69 सप्ताह। हाँ। ये हमने देखा है कि पहला दिन जो है, Timeline means God created heavens and the earth. ये डे 1 जो है, यहाँ पे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। Daniel 9:25. तब हम देख सकते हैं कि दानियल 9:25 में That a part उसका अ भाग we'll see. हम देखेंगे। Know and understand this from the issuing of the decree to the restore and rebuild of Jerusalem and until Messiah. इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक। 7 weeks means 49 years. तो हम देख सकते हैं कि 7 जो सप्ताह है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 7 सप्ताह है, 7 गुना 7 यानी 49 वर्ष। And 434 weeks years means 62 weeks. और ये जो 434 यानी 62 गुना 7 यानी 434 वर्ष है। So total is 69 weeks. अगर हम इन दो को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7 सप्ताह और 62 सप्ताह यानी 69 सप्ताह। That means उनको- 483 years. हाँ, 69 को 7 गुना करेंगे तो 483 यानी 483 इयर्स मिलेगा। That means इसका मतलब है, after 69th week the anointed is cut off. इसका मतलब है कि जब ये 69 सप्ताह यानी 69 सप्ताह खत्म होंगे तो मज़ाया जो है, मसीहा, वो काटा जाएगा। In these 7 weeks and 62 weeks, in between that, ये 7 सप्ताह और 62 सप्ताह there will be a rebuild of the temple and streets and trenches. वहां पे फिर से नगर को बसाया जाएगा हाँ. और बनाया जाएगा। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया So with जाएगा। troubles that again that Jerusalem will be built और उस कष्ट के समय यरूशलेम फिर से बसाया and the जाएगा temple will be built. और जो मंदिर है फिर से बनाया And we know जाएगा। that Messiah stood here. और हमें मालूम है कि मसीहा यहाँ पे खड़ा That हुआ means our Lord Jesus Christ was cut off. और यहाँ पर हमारा मसीहा जो है वो काटा गया। So we have seen that he was like as if he has not achieved anything. और ऐसा था कि उसके काटे जाने के वक्त ऐसा लग रहा था दुनिया को कि उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। But it is actually he has achieved everything for you and me. पर ऐसा था वहां पे कि उसने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ उसने कर दिया था। We can read from Daniel 9th chapter and 26th verse. हम पढ़ सकते हैं दानियल 9वां अध्याय और 26वां वचन। Then after the 62 weeks the Messiah will be cut off उन and will have nothing. और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। That means it will be appeared as if he has achieved nothing, but in spiritual realm he has conquered sin and death. ऐसा लगेगा यहाँ पर कि वो जब क्रूसित हुआ यानी उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, पर उसने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ उस क्रूस पर कर दिया। And he will be on the cross. और वो क्रूस पर होगा। Not for himself. खुद के लिए He will नहीं, be cut off not for himself, वो काटा इसके नहीं खुद के लिए नहीं काटा but he जाएगा, will be cut off for others. पर दूसरों के लिए काटा The जाएगा। prophecies shall be accomplished in Messiah year. और यहाँ पर मसीहा के लिए सारी जो भविष्यवाणी थी पूरी हुई। That means from the decree released, Daniel 9:25, a part. दानियल 9 उसका 24 का अ भाग। Now know and understand this from the issuing of the decree to the restoring and build Jerusalem until Messiah. That means from year to year
means 7 plus 62 weeks. 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया That जाएगा। means Jerusalem will be built and even Jesus will be cut off after 62 weeks. और यहाँ से लेके 7 गुना 7 यानी 49 वर्ष में आज्ञा निकलने के बाद मंदिर बनाया जाएगा, और फिर यहाँ पर मसीहा के काटने तक 62 और सप्ताह बीतेंगे, यानी टोटल 49 वर्ष और 434 यानी 483 साल पूरे That हो means जाएंगे। 69 weeks are fulfilled. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 69 सप्ताह बीत जाएंगे। And we know in John 2:20 और हम जानते हैं यूहन्ना 3:20 में it is written और लिखा है that this city was taken up 46 years to build up. कि ये जो नगर बसने में 40 साल लग गए. But from the commandments till the building of the temple and the street, it was 7 weeks and 62 weeks the Messiah will be cut off. हाँ, आज्ञा निकला, मंदिर बना, फिर वो नगर बसाया गया, मसीहा वहां पे काटा गया। ये सारा समय बीतने में 7 सप्ताह और 62 सप्ताह यानी 69 सप्ताह बीत गए। That means इसका मतलब है 1 week is left out of 70 weeks. एक सप्ताह बाकी बचा है 70 सप्ताह में। Out of Daniel's 70 weeks dream, दानियल का जो 70 सप्ताह का जो स्वप्न था, and the revelation which God gave to Daniel, और जो प्रकटीकरण दानियल को मिला परमेश्वर And के द्वारा, God told Daniel that these things is going to take place, और दानियल को परमेश्वर ने बताया कि ये सारी बातें होगी, and out of that और उनमें से 69 weeks are completed. 69 सप्ताह बीत गए। We'll read Daniel 9th chapter and 11th verse. हम पढ़ेंगे दानियल का 9वां अध्याय और उसका 11वां वचन। All Israel has transgressed your law and turned away, refusing to obey your voice. So the oath and a curse written in the law of Moses, the servant of God, has been poured out on us because we have sinned against you. वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर गट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। 12th verse says, 12 वचन कहता है, you have carried out the words spoken against us and against our ruler by bringing upon us a great disaster. For under of all the of heaven, nothing has been done like what has been done to Jerusalem. इसीलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। So many a time Israel sinned and God punished them. बहुतों बार इस्राएलियों ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। So temple building was done and it was destroyed. मंदिर बांधा गया और नाश किया गया। We can read from Nehemiah and Ezra. हम पढ़ सकते हैं नहम्याह और एज्रा में। They were the temple builders. वो जो थे वो मंदिर बनाने वाले थे। They have seen that oaks were burned and the walls were being broken. और जो द्वार है जल गया है और दीवारें टूट गई है। So he was grieved and he was a cupbearer for the king. और नहम्याह जो था वो प्यालेदार था राजा के लिए, And और बहुत दुखी हो गया ये सब देखकर। Like that, many servants they build it up. We know, we can learn from that. और हम उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे दासों ने मिलकर उस मंदिर को बनाया। So we will look about now a completion of Daniel's prophecy. और हम इसमें देखेंगे कि दानियल का जो भविष्यवाणी था वो किस तरह से पूरा हो रहा We have है। seen
हमने देखा how the 69 weeks completed. हमने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे 69 सप्ताह बीत गए। I believe that if a Holy Spirit will help us to understand, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा ये सब समझने के so we लिए। can see that 69 weeks accomplished up when as Messiah was cut off. और हम देख सकते हैं कि जब मसीहा काटा गया तब यहाँ पर 69 सप्ताह जो है दानियल के वो पूरे हुए। 1 week एक सप्ताह is 7 years यानी 7 वर्ष। and 70 weeks. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सप्ताह जो है वो 7 वर्ष के So बराबर है। therefore 70 weeks equals to 7 into 70 equals to 490 years. और 70 सप्ताह यानी 70 गुना 70 यानी 490 साल होते हैं। We have seen that 62 weeks मतलब 434 years. और हमने ये भी देखा कि 62 सप्ताह जो है 62 गुना 7 यानी 434 वर्ष है। And seen that 7 and 62 weeks is equal to 69 weeks. और हम देख सकते हैं कि 7 और 62 यानी 69 सप्ताह होते That हैं। means total 483 weeks. इसका मतलब है टोटल 483 वर्ष Are accomplished. पूरे हो गए। 1260 days equals to 3.5 years. और हमें मालूम है कि जो 3.5 साल यानी 1260 दिन होते हैं। We need to keep in our mind. हमारे मन में ये याद रखना है We are not going to according to our calendar, हमारे कैलेंडर के हिसाब से हम नहीं but जाएंगे according to the Hebrew calendar, पर इब्रानियों के कैलेंडर के हिसाब 1 से month equals to 30 days. एक महीना यानी 30 दिन। तो So 3.5 years equals to 1260 days. 3.5 साल यानी 1260 दिन होते हैं That means 42 months. यानी 42 महीने। And our biblical revelation language is time, times, and half a time. और हम जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है समय, समयों और आधे समय तक। That means 3.5 years. उसका मतलब है 3.5 साल। So till now we have seen that 69 weeks are accomplished, और हम fulfilled. देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 69 सप्ताह है यहाँ से लेकर मसीहा के काटे जाने तक पूरा हो गया। And only 1 week is remaining now. और अब केवल 70 में से दानियल के 70 में से एक ही हफ्ता बचा है। That 1 week is 7 years. और वो 70वां जो सप्ताह है वो है 7 साल। That 1 week is 7 years. वो एक सप्ताह बाकी जो बच्चा है वो है 7 साल। And that out of 70, 69 is accomplished, 1 is remaining. और 70 सप्ताह में से 69 सप्ताह बीत गए और बाकी एक सप्ताह ही बचा है। And it has not, God has not allowed it to pass. और परमेश्वर ने अब तक उसे पूरा होने की इजाजत नहीं दी है। For the Daniel's 70th week, God gave a pause. और 70वें सप्ताह के लिए उसको शुरू होने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर परमेश्वर ने रुका दिया समय को। After 69th week, और 69 सप्ताह के बाद there was a pause. और यहाँ पर परमेश्वर ने रोक दिया। 70th week is not yet come. और 70वां जो सप्ताह है अब तक आया नहीं है। That in between that, और उसमें उसके बीच में 69th and 70th week, जो 69 सप्ताह बीतने के बाद जो 70वां सप्ताह है उसके बीच में God gave a grace period, you can say. आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह का समय Or दिया। else in that in between time, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर उस समय के बीच में God prepared bride for Christ. परमेश्वर ने दुल्हन की तैयारी की, दुल्हन को तैयार किया क्रिस्त के लिए। Or else it's a bride era or a church era. या आप उसे कह सकते हैं दुल्हन का समय या कलीसिया का समय। That is total 2000 years. वो
टोटल 2000 साल of है body of Christ. क्रिस्त यीशु के दुल्हन के का समय। And now और अब God is removing the pause. और जो ये यहाँ पे समय को परमेश्वर ने रोका है, अब परमेश्वर इस समय को के रोकने को हटा रहा That है। means God is allowing the Daniel's 70th week to come to और pass. परमेश्वर जो है इजाजत दे रहा है कि जो दानियल का 70वां सप्ताह है वो शुरू हो जाए। And it can start anytime now. और अब से वो कभी भी शुरू हो सकता है। The 70th week is 7 years. और वो 70वां सप्ताह जो है वो एक सप्ताह यानी 7 साल है। The 70th week is 7 years. 70वां सप्ताह यानी 7 साल That है। 7 years God will begin anytime now. और परमेश्वर उस 7 सालों को कभी भी अभी से शुरू कर सकता है। We can open Daniel 9th chapter and 27th verse. हम दानियल के 9वें अध्याय और 27वें वचन में देख सकते हैं। Beautifully, God gave this timeline in Daniel. और परमेश्वर ने दानियल के इस अध्याय में बहुत अच्छी रीति से ये समय रेखा को दिया है। 27th verse. 27वां वचन। And he will confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week, he will put to an end to sacrifices and offering. On the wings of the temple, he will come, the abomination that causes the desolation, until the decree destruction is poured upon him. वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। And he will confirm a covenant with many for 1 week. और बहुतों के संग 1 सप्ताह के लिए वह दृढ़ वाचा बांधेगा। He will come and he will make a covenant for 1 week. और वो आएगा और इस सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा That बांधेगा। means for 7 years he will confirm. इसका मतलब है ये जो 7 साल है उसके लिए वाचा को पक्का करेगा। That evil one will come. वो जो दुष्ट है आएगा And he will make a covenant. He will confirm the covenant. और वह वाचा को पक्का करेगा। Already covenant was made. और पहले से ही वो वाचा आई गई है We know that. और वो हम जानते And हैं। the evil started increasing. और जो दुष्टता है वो ज्यादा और ज्यादा होने We लगी। are saying that we are right now here. और इसीलिए हम कहते हैं कि अब हम इस समय पर पहुंच गए In हैं। this place. इस जगह पर We are here right now. हम यहाँ पर खड़े हैं 2021. 2021 में। We can read from Daniel. हम दानियल से पढ़ सकते हैं 26th word and B part. 26वां वचन और ब पाठ। Then the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood, and until the end there will be wars, desolation have been decreed. और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। We need to understand where we are standing right now. और हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पर हैं। 2021 is here. और 2021 यहाँ पर है। The people of that prince will destroy the city. और उस प्रधान की जो प्रजा है नगर को नष्ट करेगी। We can see, and after that it's written, and the century, and the end will come like a flood. और अंत ऐसा होगा, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। Until the end there will be war. तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। Desolations will be decreed. क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। Already God decided to remove him.
पहले से ही परमेश्वर ने निश्चय किया है But उसे there निकालने is के a लिए, way how to remove. पर उसका ये रास्ता है कि कैसे He निकाला will make जाए। a covenant for 7 years. वो 7 सालों के लिए वो जो है यहाँ पर अपने वाचा को पक्का करेगा। यहाँ पर. यहाँ पर So anytime वाचा को पक्का in करेगा। 2021 or coming year, we are at the end. We don't know when he will make a covenant. हम अंतिम के अंतिम दिनों में हमें मालूम नहीं वो कब वो वाचा को पक्का करेगा। Maybe in बहुत September 2021, हो सकता है सितंबर 2021 में he will appear and he will make a covenant और वो वाचा को पक्का करेगा for 7 years. 7 सालों के We लिए। can see in 27th verse, and he will confirm a covenant with many for 1 week. और वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ अपनी वाचा को पक्का करेगा। He will make a fixed covenant वो पक्का करेगा वाचा को which was already made, जो पहले से बनाई गई but है, now he will confirm. पर वो अब पक्का करेगा। And after confirming, और पक्का करने के बाद as soon as he will confirm, जैसे वो पक्का करेगा we will get a sign that 7 years are begun. तो हम वहां पे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि 70वां जो सप्ताह है वो शुरू हो गया है। 7 years tribulation is started. 7 साल का जो सताव है वो शुरू हो The गया है। pause is removed. और ये जो समय को रोका गया था, इस समय को वो निकाला गया है। After 69th, the 70th week, for 70th week, God gave a pause nearly 2000 years. और यहाँ पे हमने देखा कि 69 सप्ताह बीत गए और 69 सप्ताह बीत जाने के बाद परमेश्वर ने वहां For 70th week, God gave a pause. 70वां सप्ताह आने के पहले परमेश्वर ने समय को, उस क्लॉक को रोक दिया। He had not allowed the 70th week to come. और प्रभु परमेश्वर ने 70वां सप्ताह आने की इजाजत नहीं दी। But पर in that pause, 70वां सप्ताह आने को जो रोका गया, उस समय के बीच में till 2000 years was passed, nearly. नियरली 2000 साल बीत गए। That means 4000 years last, we have seen in chart 1. और चार्ट पहले में हमने देखा कि 4000 साल Plus 2000 years. 4000 साल डे 1 से यहाँ तक 4000 साल, यहाँ से यहाँ तक 2000 साल, Total 6000 years. टोटल 6000 साल So पूरे हो गए। anytime we can be in the 70th week. और कभी भी हम 70वें सप्ताह, दानियल के 70वें सप्ताह में प्रवेश कर सकते Because हैं। 1000 years Jesus is going to reign in millennium. क्योंकि जो 1000 साल है यीशु मसीह मिलेनियम में राज्य करेगा We all will be with him. और हम सब उसके साथ रहेंगे। So that will accomplish 7000 years. और वो जो है वहां पे वो 7000 साल पूरा होगा। But now we are looking about 70th week. पर अब हम 70वें सप्ताह की ओर देख रहे हैं। In 27th verse, he said, he will confirm the covenant with many for 1 week, but in the middle of the week, he will put to an end to sacrifices and offering. 27वां वचन, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। We can see here, और यहाँ पर हम देख सकते in the हैं middle of the 7 years, 7 साल के बीच में, means 3.5 years, after 3.5 years, यानी 3.5 साल बीतने के बाद he will break that covenant or he will stop the sacrifices and offering. वह जो है आधे ही सप्ताह के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। He will stop the sacrifices to the living God. जो जीवित परमेश्वर है उसको जो मेल बलि और अन्न बलि मंदिर में चढ़ाई जाती है उसे बंद He will कराएगा। stop the sacrifices in the Jerusalem. वो यरूशलेम में अर्पण जो है बंद कराएगा। That means in Jerusalem, any time the temple can be built now. और अब कभी भी यरूशलेम में मंदिर बांधा We all जाएगा। know that. वो हम सब जानते हैं। That temple, you know,
आप जानते हैं वो मंदिर क्यों? Because in that temple Jesus stood, read from Isaiah 61. क्योंकि वहां पर इसी मंदिर में यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने यशा का 61 अध्याय पढ़ा था। You know why Jesus stood in that temple? आपको मालूम है यीशु मसीह उस मंदिर में क्यों खड़ा हुआ था? Because Jewish people worship the one and true living God. क्योंकि यहूदी ही है जो जीवित परमेश्वर रचयिता को आराधना करते हैं। Jewish nation begin with one man. यहूदी जो देश है वो एक मनुष्य से शुरू हुआ। We have seen that how 6 lakhs and more people came out of Egypt. और हमने देखा कि 6 लाख पुरुष कैसे मिस्र देश से बाहर आए How they went there? और वहां पे वो कैसे गए। They were the children of one man. वो एक व्यक्ति के पुत्र थे, 12 बच्चे थे। 12 sons to Jacob. याकूब के 12 पुत्र And that 12 sons became a 12 tribes. और जो 12 पुत्र थे वो 12 गोत्र बन गए। And father of Jacob was Isaac. और याकूब का जो पिता था वो इसहाक था। Father of Isaac was Abraham. और इसहाक का जो पिता था वो अब्राहम था। Father of Abraham was Terah. और अब्राहम का पिता जो था वो तेरह था। Terah was an idol worshipper और and an idol maker. तेरह जो था वो मूर्ति पूजक था और मूर्तियों को बनाता था. And God called son of Terah Abraham out. और परमेश्वर ने तेरह के पुत्र अब्राहम को वहां से बाहर बुलाया। Only one man, केवल एक व्यक्ति Abraham, came out. अब्राहम बाहर आया। And he came to know that God of heavens and the earth, और वो जान गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर कौन a है। man, Hebrew man, इब्रानी व्यक्ति he came out वो बाहर आया। through Abraham, Isaac, and Isaac to Jacob, Jacob to 12 tribes, 12 tribes to a big nation, more than a 6 lakhs people. अब्राहम Men, से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से Israel, इज़राइल of 12 tribes, और 12 गोत्र। one God they used to worship. एक परमेश्वर की वो आराधना करते थे। Moses led them out of Egypt. और मूसा ने उन्हें अगुवाई की मिस्र देश से बाहर They निकालने came के out लिए। of slavery. वो गुलामी से बाहर आए। They crossed the Red Sea. उन्होंने लाल समुद्र को पार They किया। crossed the Jordan. उन्होंने यर्दन नदी को पार They were किया। established in the Canaan place. वो कनान देश में वो स्थिर हुए। They destroyed the Canaanites. वो कनानियों को नाश किया They उन्होंने। destroyed many Amalekites or many nations. और बहुत सारे राष्ट्रों को उन्होंने नाश किया। And God showed the pattern to Moses, और परमेश्वर ने मूसा को वो तरीका बताया at holy place, most holy place, and our outskirt. और उसने बताया कि तंबू को कैसे बांधना है, बाहर की जगह, पवित्र जगह और अति पवित्र स्थान के लिए कैसा करना है। And that was a pattern to worship God. और वही जो है तरीका वो परमेश्वर की आराधना करने का है। David thought, I am going to build a temple for God. और दाऊद ने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा, For he is living in a tent. क्योंकि वो तंबुओं में रह रहा He is है worshipped in a tent. और परमेश्वर तंबू में आराधना किया जा रहा है। But God tells, not you, but your son Solomon is going to build. पर परमेश्वर ने कहा दाऊद तू नहीं पर तेरा पुत्र सुलेमान The बांधेगा। first temple was built by Solomon, the great king. तो पहला जो मंदिर था वो सुलेमान राजा के द्वारा बांधा गया था, For a living and one true God. जो जीवित और एक सच्चा परमेश्वर है उसके लिए। And that temple, और वो मंदिर Bible says in, I think, 1 Timothy 3:16, बाइबल कहता है पहला तिमोथी 3:16 में that no one has seen God. कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, Not even angels saw God. न ही स्वर्गदूतों ने देखा, But first time, पर पहली बार God appeared in flesh.
पहली बार परमेश्वर देहधारी हुआ Amazing and wonderful. और ये बहुत ही अद्भुत है। That is what in Daniel 9:26 says. ऐसा दानियल 9:26 में कहता That है Messiah, God, which appeared in flesh, was cut off. और वो मसीहा जो देहधारी हुआ वो काटा गया, As if he has achieved nothing for himself. ऐसा हुआ कि उसको उसके लिए कुछ भी नहीं मिला, But he achieved for everyone. पर सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया For everyone. हर एक के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So, in that temple, तो उस मंदिर में which was destroyed by many other kings or Babylon kings, और वो मंदिर जो बेबीलोन राजा ने नाश किया था, which Solomon was built, जो सुलेमान ने बनाया था, it was rebuilt by Nehemiah, Ezra and many others. वो मंदिर नहम्या, एज्रा और बहुतों के द्वारा बांधा गया। That is called the Herodos temple. उसे हेरोदोस का मंदिर भी कहा We जाता can Google है। it out and see. हम गूगल करके देख सकते हैं। It took 46 years. उसे बांधने के लिए 46 साल. 40 साल लग गए And plus 3 years is 49 years. और आज्ञा निकलने का समय 3 साल यानी टोटल 49 वर्ष बीत गए। So in 7 weeks plus 7 plus 62 is 69 weeks. 7 सप्ताह और 62 उसके बाद जो सप्ताह थे टोटल 69 सप्ताह बीत So we गए। have seen the completion of 69 weeks. तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे 69 सप्ताह बीत As गए Messiah stood in the temple और जैसे मसीहा मंदिर में खड़ा हुआ and read from the scriptures उसने व्यवस्था की किताब से पढ़ा, from Isaiah 61, वहां से यशा का किताब उसमें 61 अध्याय, as soon as people heard, और जैसे ही लोगों ने सुना they became rebellious. वो उसके विरुद्ध हो गए। They said, is he a God? उन्होंने कहा क्या ये परमेश्वर Is he a है? Messiah? क्या वो मसीहा है? What he read? उसने क्या पढ़ा? We can see in Luke 4:16 to 30. हम लूक 4:16 से 30 तक देख सकते हैं। What he read. उसने क्या पढ़ा? He stood on the temple, in the temple. वो मंदिर में खड़ा हुआ, He took the scriptures of Isaiah वो यशा का किताब लिया and he started reading. और वो पढ़ने लगा। The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord anointed me to preach the good news to the poor. He sent me to bind up the broken-hearted and to proclaim the liberty to the captives and freedom to the prisoners, and to proclaim the year of the Lord's favor and to the day of our Lord's vengeance, to comfort all who mourn and to console the mourners in the Zion, to give them a crown of beauty of ashes. He started reading it. और 61 अध्याय, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों को। As soon as he read the scriptures, और जैसे ही उसने ये वचन पढ़े, we can see from Luke 4th chapter हम देख सकते हैं लूक का 4था अध्याय and 20th verse. और उसका 20 वचन। He rolled up the scriptures उसने पुस्तक को रोल किया and gave it to the attendant और वहां पे अटेंडेंट को दिया and sat down. और बैठ गया। The eyes of everyone in the synagogues were fixed on him, and he began by saying, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। and he said then,
और उसके बाद उसने कहा, Today the scriptures is fulfilled in your hearing. आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ Why है। they were looking at him? वो क्यों उसकी ओर देख रहे What थे? he spoke. उसने क्या बोला? He himself is a God who is unseen, has been seen, वही परमेश्वर है जो न दिखने वाला परमेश्वर देहधारी हुआ, about whom John read. John जिसके said, बारे में यूहन्ना ने कहा In the था, beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. शुरुआत में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। About him Paul wrote in Timothy 3:16. और उसके बारे में तिमोथी 3:16 में लिखा है। And as soon as he said, the scriptures is fulfilled now on your hearing. और जैसे उसने कहा कि तुम्हारे सुनने से यह लेख पूरा हुआ, Then 22nd verse we'll read it. All Luke 4:22. All spoke well of him and marveled at the gracious words that came from his lips. Isn't this the son of Joseph? They asked. तब सब ने उसे सारा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुख से निकलती थी उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? And 28th verse says, 28वां वचन कहता है, on hearing this, all the people in the synagogue was enraged. ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। And they got up, drove him out of the town, and let him to brow और of the hill of which the town was built, in order to throw him over to the cliff. उठकर उसे नगर से बाहर निकाला कि पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। You can read this all. ये आप सब पढ़ सकते The हैं। Jesus, our Lord, stood in the midst of the temple. प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़ा रहा। In the same way that prince, और वही तरीके से वो प्रधान, he will stand in the in the middle of the 7-year. He will stand in the temple. प्रधान यानी अंतक्रिस्त जो होगा वो 7 साल के बीच में उसी मंदिर में खड़ा होगा, To stop the sacrifices to the living God. जो जीवित परमेश्वर है उसको अन्न बलि और मेल बलि जो Because चढ़ाई Jewish will जाती build a है, temple for the living God. क्योंकि यहूदी जो है जीवित परमेश्वर के लिए मंदिर To बनाएंगे। understand this, ये समझने के because we लिए, know that one true Lord is Jesus. क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही जीवित परमेश्वर है, वो है प्रभु Jesus is the image of unseen God. यीशु मसीह जो है न दिखने वाले परमेश्वर की प्रतिमा है। But Jewish, who are Jewish? पर यहूदी कौन है? And we can understand in properly when we'll read from Romans 11th chapter. और ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब रोमियो का पत्र उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे। Because of their rejection, उनके इनकार करने the नकारने की gospel वजह से went to Gentiles जो सुसमाचार है अन्य जातियों के पास गया and their door were closed, और उनके लिए दरवाजा बंद किया गया that Gentiles may be pushed in. कि उस दरवाजे के अंदर जो अन्य जाति के लोग हैं वो You डाले and जाए, I may be get saved, आप और हम जो है वो बचाए जाए, and we उद्धार may be पाए pushed in. और हम अंदर द्वार के अंदर But डाले Paul says, जाए। don't forget it. The gospel has come from the Jewish. पर पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार है वो यहूदियों के लिए आया है, So God will surely again bring them back. तो परमेश्वर जरूर उन्हें वापस लेकर आएगा, His ways are amazing. क्योंकि उसके जो तरीके हैं वो अद्भुत He हैं। just don't want to cover Jewish, वो केवल यहूदियों को ही कवर नहीं करना but he want to चाहता, cover whole humanity. पर वो सारे मनुष्य जाति के लिए ये करना चाहता That's है। why in John 3:16 it is written, इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा God है, has loved us so much. परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम He किया has loved the whole world so much और परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम that किया whosoever believeth on him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न The होगा। doorway was open wide for whole Gentiles. और पूरे
अन्य जातियों के लिए ये दरवाजा खोला हुआ था that they may come in. कि उसके अंदर वो आ He will सके। stand in the middle of the week. और ये सात Saal. साल यानी सप्ताह के बीच में वो खड़ा होगा And he will stop the sacrifices for the one true living God. और एक जीवित परमेश्वर के लिए जो अन्न बलि और मेल बलि है उस अर्पण को बंद In कराएगा। 9:27 we have read, 9:26 we have read, दानियल 9 और 26 में हमने पढ़ा the people will go and they will destroy and they will corrupt and they will pollute. कि लोग जाएंगे नाश नाश करेंगे. करेंगे उसे खराब करेंगे। So that destroy is means not destroying, just they will pollute. नाश करना वहां पे लिखा है यानी नाश नहीं करेंगे पर उसे खराब कर देंगे। Because in Hebrew it is written yashi, क्योंकि इब्रानी में लिखा है यशी but means मतलब corrupt. खराब कर देंगे। We can see now the same system is working now. और अब हम देख सकते हैं कि वही सिस्टम अब काम कर रहा The है people of that prince are working now. और वही प्रधान के जो लोग हैं अब काम कर रहे In हैं। Greek it is called katehon. और जो ग्रीक है उस ग्रीक में, ग्रीक ग्रीक भाषा में उन लोगों को नहीं, उसको कतेहोन कहते हैं. उसे कतेहोन कहते हैं। So that means that is a system. इसका मतलब है वो सिस्टम है। That is a system of devil. वो शैतान का कंट्रोलिंग सिस्टम है। That system controls everything. वो सिस्टम जो है हर एक को कंट्रोल करता है। We can read it in 2 Thessalonica, वो हम 2nd chapter and 6th verse. दूसरा थस्सलोनिकियों उसका दूसरा अध्याय 6वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। We have learned last week this one. और पिछले हफ्ते में हमने ये That पढ़ा he is था। the one who restrains. वही है वो जो रोकता है। Restrains means we need to cut it off and katehon controls. वो सब control करता है. वो कंट्रोल करता He है। controls everything. वो सब कुछ का ताबा लेता है। And after that, उसके बाद end will come. अंत आएगा। We will go तो as time is. जैसे हम जाएंगे समय आएगा We will go step by step हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे and we will continue. और हम जारी रखेंगे। So I believe this week this is understood. मैं समझता हूँ कि ये आपने समझा। 7th day is a Sabbath. यहाँ पे हम देख सकते हैं 7th डे जो है 7वां दिन को Sabbath day. साबत दिन कहते हैं। When we read scriptures, जब हम वचन को पढ़ेंगे God spoke with Daniel about 70 Sabbath years. परमेश्वर ने दानियल के साथ 70 साबत सालों के बारे में कहा। That means 70 weeks for his people. उसका मतलब है 70 सप्ताह उसके लोगों के 70 लिए। weeks means 70 सप्ताह मतलब 70 70 सप्ताह into 7. 70 गुना 7 यानी 490 साल। 70 सप्ताह 70 साबत साल यानी 70 सप्ताह उन Okay. लोगों के So we लिए। can see that 490 years accomplishes. हम देख सकते हैं कि 490 साल पूरे हुए And in out of 490 years, और 490 सालों में we are only 483 years are accomplished. केवल 483 साल जो है वो केवल पूरे हुए That हैं। means 69 weeks are accomplished. इसका मतलब है 69 सप्ताह पूरे हुए हैं। 1 week which is remaining. और 70 सप्ताहों में से जो एक सप्ताह है वो रुका हुआ है। जो रखा हुआ है, जो रुका हुआ we है accomplish now. वो अब पूरा होगा। That means we are at that end point. इसका मतलब है हम अनुग्रह के समय नहीं, के अंत समय हाँ। में हैं। And that means we 2021 anytime 2021 में कभी भी we are standing in the end of the end days. हम अंत के अंतिम समय में हैं God will interim in that period. और परमेश्वर उस समय में मध्यस्थी करेगा। That means God will put that 7th year in that. और परमेश्वर वो 70वां जो सप्ताह है यानी Last 7 आखिरी सप्ताह वहां पे डाल देगा And it will continue anytime now. और वो कभी भी अब से शुरू होगा। If anyone is having any doubt, any question to ask, you can ask. अगर किसी को भी कोई सवाल पूछना है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जिसको अधिकार देगा है वो शैतान खुद सब करेगा। अधिकार देने वाला है वो
खुद करेगा वो सब। He will allow, God will allow. परमेश्वर उसे अलाउ करे, इजाजत देगा, Because he is the fallen angel, Satan. क्योंकि वो गिरा हुआ शैतान है। And Satan will enter, that we will learn in future. और आगे हम सीखेंगे Satan will enter into a man, कैसे शैतान मनुष्य में आएगा, and that man is called Antichrist. और उस मनुष्य को अंतक्रिस्त कहते We may understand because we are God's people. हम समझ सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, God will open the things और परमेश्वर अपने रहस्यों को खोलेगा। as soon as जैसे ही Satan enters into that man, और जैसे ही शैतान उस मनुष्य में प्रवेश करेगा, as Satan entered into Judas Iscariot, जैसे जो शैतान है यहूदा इस्करियोत के अंदर घुस गया, and he became a man of prediction, और वो जो मनुष्य है वो पकड़वाने वाला बन गया, पकड़वाने वाला बन गया, and he betrayed Jesus. और यीशु को उसने पकड़वाया। In the same way, उसी रीति से Satan will enter into that man, शैतान जो है उस मनुष्य में प्रवेश and करेगा, that man will be turned as an antichrist. और वो मनुष्य जो है अंतक्रिस्त हो जाएगा, And God will allow him to rule. और परमेश्वर से इजाजत देगा कि वह राज्य करे। That's why 7 years. इसीलिए 7 साल Bible says, बाइबल कहता है, if God will not shorten the period, अगर परमेश्वर ने उस समय को घटाया ना होता, then no man ever can live in this planet Earth. तो कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पे रह नहीं सकता था। So much tribulation, इतना सताव, so much pain. इतना तकलीफ, So it reduced to 7 years. तो वो 7 साल में घटाया गया है। But for us, पर हमारे it लिए will be reduced more. हमारे लिए और उसको घटाया गया It है। will be 3.5 years. वो 3.5 साल We रहेगा, will be there in these 3.5 years. और ये पहला 3.5 साल हम रहेंगे। But we will be having a supernatural protection and supply. पर ये 3.5 साल हमारे लिए अनैसर्गिक अनैसर्गिक सुरक्षा रहेगी, अनैसर्गिक सप्लाई रहेगा। God will supply for us. परमेश्वर हमारे लिए सप्लाई We should करेगा। not be dismayed. हमें निराश नहीं होना So है। we need to prepare ourselves. तो हमें अपने आप को बनाना We है, should become a trumpet of God. और हमें परमेश्वर की तुरई बनना We है, should speak to everyone. और हमें हर एक को बताना है। Surely God will come. God will be saving them. पक्का ही परमेश्वर उन्हें उद्धार देगा। But now we are the trumpet speaking and announcing Lord's coming. अब लेकिन हम वो तुरई है जो सुसमाचार को फैलाते हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन को की घोषणा करते He will हैं। come to reign वो आएगा और राज्य करेगा for 1,000 years. 1000 सालों के So for we लिए। are becoming a trumpet, we are prophesying. तो हम जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं और बता रहे हैं सबको। Okay, should we bow down and pray? क्यों ना हम हमारे सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Father God, पिता परमेश्वर, we thank you for your grace. हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के We लिए, thank you for your mercy. तेरे दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, which you helped us to understand. जो तूने हमें मदद किया समझने के लिए। As we are learning, Lord, और जैसे ही हम सीख रहे हैं we pray परमेश्वर, let your good spirit may rest upon each one of us. कि तेरा अद्भुत आत्मा हम पर आए और हम पर राज्य करे। Father, हे पिता, the enemy may be doing anything. दुश्मन कुछ भी क्यों न करे, He may be showing his powers and colors, वो अपने सामर्थ्य को, रंगों को क्यों न बताए, but your church will not fear. पर तेरी कलीसिया डरेगी नहीं, Your people will not be afraid. और तेरे लोग डरेंगे नहीं। For we know, Lord, क्योंकि हम जानते हैं as प्रभु, Jesus said to Pilate, जैसे यीशु ने पिलातुस को कहा, until the authority is given to you, no man can do anything. जब तक तुझे अधिकार नहीं दिया गया तू कुछ भी नहीं कर सकता। We thank you, Father, हम धन्यवाद for करते all हैं, authority, सारा for अधिकार, all power, सारे for सामर्थ्य all strength, और सारा ताकत, all glory सारी महिमा belongs to you आपको है, forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। We all say हम सब कहते हैं Amen. आमीन, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।